Hello student, how are you? I think you all are fine and safe at home. Welcome to our EVS lecture, that is class 8 chapter number 9. Today we are going to start with this chapter, that is disasters can be devastating. Disasters, what do you mean by disaster? Disaster क्या होते हैं? Disasters are sudden and cause major upsets. डिज़ास्टर क्या होते हैं? वो सडन होते हैं, वो किसी को पता नहीं होता कि वो होने वाला है, जैसे कि अर्थक्वेक, इरप्शंस जैसे। दे कॉजेस डिस्ट्रक्शंस, डिसीजेस एंड डेथ, और उसकी वजह से हम क्या क्या कॉज होते हैं? डिस्ट्रक्शंस कॉज होते हैं, डिसीजेस कॉज होती है और फिर डेथ कॉज होती है। तो डिज़ास्टर में भी इट मे बी नेचुरल डिज़ास्टर और इट मे बी मैन मेड डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर कौन कौन से हैं? नेचुरल डिज़ास्टर है और मैन मेड डिज़ास्टर है। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर कौन कौन से हैं? जैसे कि लैंड, वाटर, वेदर। जो लैंड डिज़ास्टर, वाटर डिज़ास्टर एज वेल एज वेदर डिज़ास्टर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड द नेक्स्ट वन इज मैन मेड डिज़ास्टर्स। मैन मेड डिज़ास्टर्स आर एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट्स, टेररिज्म, वॉर, industrial, radiation leak as well as epidemic. So in first of all we are going to study about the natural disaster. So children, you can open your page number 72 of your book. Here one example is given of your in your book, that is about the disaster of an earthquake. एक earthquake का example दिया गया है. Let's read with that. At 6:30 a.m. on 26 December 2004, a major earthquake, now known as Great Sumatra Andaman earthquake, struck the Andaman Island on the southernmost point of India. 26 दिसंबर 2004 में एक earthquake हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? वो अंडमान में। ये एक major earthquake था and it has Lakshmi, who was expecting her first child, was so shocked she lost consciousness. Her husband Balram rushed her to a clinic just as the tsunami hit the island. और जैसे ही सुनामी आ रही थी, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है लक्ष्मी और उसके हस्बैंड का, तो अपने को बचाने के लिए देखा तो वहाँ पर क्या हो रहा था? आइलैंड पे सुनामी आ रही थी। सुनामी का मतलब जानते हो आप लोग कि ये एक तरह का डिज़ास्टर है, यानी पानी का बहाव बहुत तेज होता है। Doctors and assistants ran helter-skelter. Before their eyes, the clinic was washed away. Balram almost dragged Lakshmi to a higher ground. After spending 2 nights in the open, Lakshmi was put on a rescue ship INS Gharyal. और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वो कहाँ पर रुके थे? 2 रात तक वो लोग एक शिप पे रुके हुए थे। That evening on the high seas, Lakshmi's daughter was born. और लक्ष्मी ने एक डॉटर को जन्म दिया। The doctor named द बेबी ग्लोरी एंड हर पेरेंट्स नेम्ड हर वर्षिनी। पेरेंट्स ने उसका नाम रखा वर्षिनी और डॉक्टर ने उसका बेबी ग्लोरी नाम रखा। दिस चाइल्ड इज़ अ फॉर्चुनेट सर्वाइवर ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। और ये चाइल्ड जो कि बॉर्न बेबी थी, वो एक फॉर्चुनेट सर्वाइवर थी, क्योंकि एक इतनी बड़े डिस्ट्रक्शन में एक बेबी बॉर्न होना और सर्वाइव करना एक बहुत बड़ी बात है। सो दैट किल्ड थाउजेंड्स एंड इवन चेंज द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड. The North Pole is believed to have shifted by an inch. Days are believed to have been shortened by 2.68 microseconds by Sumatra Islands have probably shifted also. So we know from Varshini's story. वर्षिनी की स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? That natural disasters are sudden. Natural disaster क्या होते हैं? सडन होते हैं। वो किसी को बता के नहीं होते। They can cause major upsets like destructions, diseases or death. The damage caused by disasters varies with geographical location, climate and many other factors. Disaster जो होते हैं वो क्या होता है? वो वैरी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह according to the climate, according to the location as well as many other factors. It may take years before life returns to the normal. और फिर वापस से as it is normal life लाने के लिए हमें बहुत सारे साल लग जाते हैं. And gets over the upsets caused by this disaster. Generally, disaster may be of 2 types, that is natural disaster as well as man-made disaster. Firstly, हम लोग पढ़ेंगे natural disaster. Natural disasters are caused by natural hazards. जैसे कि हमने देखा है earthquakes, landslides, volcanic eruption, ये सारे कौन से disaster है? Natural disaster है.
There is a dispute regarding the use of term natural as no event can be hazardous or disasters without human involvement. तो ये क्या, ये एक तरह का नेचर से हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है नेचुरल डिजास्टर्स. सो नेचुरल डिजास्टर कैन टेक प्लेस एनीवेयर ऑन द अर्थ. तो ये कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है, इसलिए ये अर्थ में कहीं पर भी हो सकता है. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉमन डिजास्टर्स. तो नेचुरल डिजास्टर्स की लिस्ट है. फर्स्ट है लैंड डिजास्टर. लैंड डिजास्टर का एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, जैसे एवलेंचे, अर्थक्वेक, लहर्स, लैंडस्लाइड्स, ये सारे हैं लैंड डिजास्टर्स. लैंड डिजास्टर्स में क्या होता है, जैसे कि अभी फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है एवलेंचे. अ रैपिड स्लाइडिंग डाउन ऑफ अ ह्यूज मास ऑफ अ स्नो डाउन अ स्लोप इज कॉल्ड एवलेंचे. एवलेंचे क्या होता है कि जो एक स्नो बर्फ़ होती है वो एक स्लाइड के थ्रू आती है बहुत ऊपर से, इट स्लाइड्स फ्रॉम द अप टू डाउन, और एक तरह से बहुत तेज बहाव में आती है, उसको हम कहते हैं एवलेंचे. एंड एवलेंचे कैन मिक्स एयर एंड वाटर विद द डिसेंडिंग स्नो. और वो क्या मिक्स करती है, एयर और वाटर को मिक्स करके स्नो बन जाती है. द कोलका करमांडोन एवलेंचे ऑफ 2002 वॉज एन एग्जाम्पल, वन ऑफ द वर्स्ट इन रिसेंट टाइम्स. और अभी के टाइम में जो अभी रिसेंटली हुआ है, दैट इज़ इन 2005, एक एग्जाम्पल दिया गया है कोलका करमांडो एवलेंचे का. सो अ 500 फीट चंक ऑफ आइस वूश डाउन. कितनी बड़ी आइस थी, 500 फीट की आइस, दैट इज़ 150 मीटर की, 20 माइल्स एट अबाउट 62 माइल्स पर आवर, और उसकी स्पीड दी गई है 62 माइल्स पर आवर. इस स्पीड के द्वारा वो स्लाइड करिए. इट स्प्रेड ओवर अ विड्थ ऑफ 200 मीटर्स एंड किल्ड 125 पीपल. और उसकी वजह से उस कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, 125 लोग पीपल वर किल्ड इन दिस. सेकेंड एग्जाम्पल इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का मतलब सब जानते हैं, जैसे कि भूकंप आना, सडन शॉक. सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द शॉक वेव्स स्प्रेडिंग अक्रॉस द अर्थ और अंडर द सी. हम कहते हैं ना कि धरती हिल गई, तो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि सडन शॉक होता है जो कि अर्थ के अंदर होता है. द सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक ऑफ 26 दिसंबर वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर, अबाउट 9.1 डिग्रीज ऑन द रिक्टर स्केल. और अभी का जो रिसेंटली का एग्जाम्पल 2004 का अर्थक्वेक का, जो कि हमने अभी रीड किया था लास्ट पेज पे, तो वो एक एग्जाम्पल है जो कि उसमें हमने रिकॉर्ड किया गया है कि अर्थक्वेक 9.1 डिग्री पे था, उसको रिकॉर्ड किया है. रिक्टर स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक. इट कॉज्ड अ सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स दैट लेड टू द किलर सुनामी. About 230,000 died all over the world. और उसकी वजह से 230,000 people were died in that earthquake. The strongest earthquake recorded in history hit Chile on 22nd May 1960. It touched 9.5 on the Richter and left about 1,655 dead and 20 lakh homeless. और इसने ये जो चील का earthquake था, it was also a major earthquake and it has also caused 1,655 people were dead as well as 20 lakh people were homeless, यानी वो बेघर हो गए 20 लाख लोग. नेक्स्ट इज लहर. द फ्लो ऑफ मडी वाटर एंड वॉल्केनिक मटेरियल ड्यू टू द बर्स्टिंग ऑफ क्रैटर लेक ऑन अ वॉल्केनो इज कॉल्ड अ लहर. लहर किसे कहते हैं, जब मडी वाटर मिक्सअप होता है, किससे मिक्सअप होता है वो, इट गेट्स मिक्सअप विद अ क्रेटर, सो वी कैन कॉल्ड इट अ लहर. अ फ्लड कॉज्ड बाय अ ग्लेशियर, heavy rainfall or a lake breakout can also release a lahar. lahar can be caused by a, जैसे कि एक फ्लड आ रहा है, यानी बाढ़ वगैरह आ रही है, उसके साथ एक ग्लेशियर मिक्सअप हो जाता है या फिर बहुत तेज़ बारिश के साथ, तो उसको हम कह सकते हैं लहर. लहर ट्रेवल्स एट अ ग्रेट स्पीड विथ ट्रेमेंडस फोर्स, और ये एकदम ट्रेमेंडस फोर्स से आता है. देन दे कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस बिकॉज ऑफ द एनर्जी एंड स्पीड, और एनर्जी और स्पीड की वजह से ये एक तरह का डेंजरस माना गया है. वंस अ लहर सेटल्स इट सॉलिडिफाइड्स लाइक सीमेंट. In 1985, 23,000 people and virtually whole of the city of Armero, Colombia were buried under 5 meters of लहर. और एक एग्जाम्पल दिया गया है लहर का भी कि 1985 में 23,000 people किल हो गए थे, वर किल्ड, देवर बरीड, वो लोग दब गए थे. और कितनी फीट में, 5 मीटर्स फीट में वो लोग जाकर, रेसिड्यू ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इरप्शन ऑफ नेवाडो डेल रूज. सो इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ लहर. नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड सबको पता है कि लैंडस्लाइड्स आर रॉक्स एंड अर्थ
फ्लोइंग डाउन अ माउंटेन स्लोप, माउंटेन से रॉक स्लाइड्स गिरती है उसे हम कहते हैं लैंड स्लाइड्स। दे आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन और इवन बाय अर्थक्वेक्स, तो वो किसकी वजह से हो पाती है, या तो अर्थक्वेक की वजह से हो जाती है या फिर वॉल्केनोज की वजह से होता है। वन ऑफ द वर्स्ट लैंडस्लाइड इन रिसेंट टाइम वॉज द वर्गास मड स्लाइड। मड स्लाइड मीन्स दैट इज मड मिक्सड विथ मड फ्लो, दैट इज अ स्लो मूविंग मड फ्लो। मड फ्लो मीन्स जो मिट्टी का जो फ्लो है वो मूवमेंट, उसको कहते हैं मड फ्लो। सो इट इज इन वेनेजुला, Vargas mudslide in 1999 in Venezuela and thousands of people were killed there, that is died, and Los Corrales town was buried under 3 meters of mud। और एक टाउन पूरा क्या हो गया, बरी हो गया, यानी दब गया उसके नीचे, मड के नीचे। नेक्स्ट इज वाटर डिजास्टर। वाटर डिजास्टर, एग्जाम्पल ऑफ वाटर डिजास्टर इज दैट इज फ्लड, लिम्निक इरप्शंस, tsunami, these are the examples of water disaster. First we will have a flood. What do you mean by flood? Flood is an overflow of water from lake. जब लेक, रिवर या सी से ओवरफ्लो हो जाती है वो नदी या समुद्र, तो उसे हम कहते हैं फ्लड, यानी उसमें पानी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज हो जाता है। अ फ्लड कैन बी कॉज्ड बाय एनी ऑफ इवेंट्स सच एज इंटेंस रेनफॉल, फ्लड किसी भी वजह से हो सकता है, और मेल्टिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ स्नो, स्नो का जो पिघलती है उसकी वजह से भी हो सकता है। फ्लड्स कैन कॉज लॉट्स ऑफ डैमेज टू क्रॉप्स एंड ह्यूमंस, और उसकी वजह से किसको हानि होती है, क्रॉप्स को भी और ह्यूमन बींग्स को भी। सेकेंडली इट इज़ लिम्निक इरप्शन, इट इज़ अ रेयर टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ये बहुत कम हो पाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एट द बॉटम ऑफ द डीप लेक रीचेज द सरफेस एंड एक्सप्लोड्स आउटवर्ड, इट सफोकेट्स द वाइल्ड लाइफ, लाइवस्टॉक एंड ह्यूमंस, द लेक इज सेड टू बी इरप्ट और एक्सप्लोड। तो ये एक बहुत कम दिखाई देने वाला डिज़ास्टर है, और इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लेक के अंदर ट्रैप होती है डीप इनसाइड द लेक, व्हेन इट गेट मिक्सेस एंड इट गेट एक्सप्लोड्स आउटवर्ड, और फिर वो बाहर निकलती है, तो वो किस पे इफेक्ट पड़ती है, वाइल्ड लाइफ पर, एनिमल्स पर और ह्यूमन बींग्स पर। एंड द लेक इज सेड टू इरप्ट और एक्सप्लोड, तो उस लेक को कहा जाता है इरप्ट और फिर एक्सप्लोड। जस्ट 2 मेजर लिम्निक इरप्शंस आर नोन टिल डेट, अभी तक के 2 ऐसे इरप्शंस हुए हैं जो कि इन 1984 और 1986 में हुए हैं। फर्स्ट इज लेक्स मुनॉन एंड सेकेंड इज नियोस, दे बोथ वर इन कैमेरून। द फर्स्ट killed 37 people and the second killed at least 1700 people। फर्स्ट इरप्शन से 37 पीपल किल्ड हुए थे और सेकेंड से 1700 पीपल किल्ड हुए। नेक्स्ट इज सुनामी, देयर आर हाई वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शन। आपको पता है सुनामी किसे कहते हैं, जो अंडर वाटर क्या होता है, हाई वेव्स आती है वाटर के अंदर, तो उसे हम कहते हैं दैट इज इट माइट बी अंडर द सी, सो वी कैन कॉल देम सुनामी। द 2004 सुनामी वॉज द वर्स्ट इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, और अभी तक का जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड है उसमें 2004 की जो सुनामी है वो एकदम वर्स्ट मानी गई है, बिकॉज हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन दैट, 2,30,000 people were killed in that. So next is weather disaster. What do you mean by weather disaster? weather disaster का मतलब है जैसे साइक्लोन्स, जैसे विंड के द्वारा होती है, तो ये सारे फॉरेस्ट फायर्स के द्वारा, ब्लिज़ार्ड के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं वेदर डिजास्टर। फर्स्ट इज ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड क्या होता है, इट इज़ अ सीवियर विंटर स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अ डिलग ऑफ स्नो। इसमें क्या होता है, सर्दियों के मौसम में जब हवाएं चलती है, बहुत तेज़ी से हवा चलती है और किससे मिक्सअप हो जाती है, वो स्नो से मिक्सअप होकर। ऑन 12 मार्च 1993 द स्टॉर्म ऑफ अ सेंचुरी और द ग्रेट ब्लिज़ार्ड ऑफ 1993 स्वेप्ट थ्रू 26 स्टेट्स ऑफ यूएसए। और ये एक एग्जाम्पल दिया गया है ब्लिज़ार्ड का कि यूएसए के अंदर 26 स्टेट्स वर सफरिंग, एटलीस्ट हाफ ऑफ द पीपल ऑफ यूएसए वर इट विक्टिम्स, और more than half of the people were victims of that and 270 people were died in that. Next is cyclone. cyclone किसे कहते हैं, cyclones are spirally winds rushing into an area of low pressure। आपने देखा होगा cyclones क्या होता है, जो हवाएं गोल गोल घूमती हुई स्पायरिकली घूमती हुई हवाएं आती है बहुत तेज़ी से, स्ट्रॉन्ग विंड्स, दे मूव क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर
एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्या होती है, क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से घूमती है, तो उसे हम कहते हैं साइक्लोन्स। ये इसको सीवियर स्टॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज दैट इज ड्रॉट एंड फेमाइन। ड्रॉट का मतलब होता है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो व्हेन इट डजंट रेन एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वाटर सोर्सेज ड्राई अप एंड द लैंड ड्राइज एंड कॉजेज क्रैक ऑन द सरफेस। और क्या होता है, अगर ज़्यादा समय तक किसी जगह पर बारिश नहीं आती है किसी एरिया में, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो धरती सूख जाती है और वहाँ पानी की बहुत कमी हो जाती है, तो सरफेस लैंड में भी क्या हो जाती है, क्रैक्स आ जाती है। दिस कंडीशन वेयर शॉर्टेज ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मल रेनफॉल इज नोन एज ड्रॉट। और इस कंडीशन को जब कहा जाता है कि इट इज़ अ ड्रॉट। ड्रॉट रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ क्रॉप, और इसकी वजह से वहाँ पर क्रॉप्स की भी बहुत कमी हो जाती है, अल्टीमेटली लीडिंग टू फेमाइन, और इसकी वजह से फेमाइन रिजल्ट होता है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनिमल लाइफ। ड्रॉट कैन ऑल्सो कॉज अनकंट्रोलेबल फॉरेस्ट फायर। और ड्रॉट की वजह से क्या होता है कि एनिमल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव विटनेस सीवियर ड्रॉट्स इन स्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के बावजूद भी बहुत सारी कंट्रीज अभी भी ड्रॉट का सामना कर रही है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आप लोगों ने देखा होगा, उसकी वजह से भी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। दीज आर अनकंट्रोल्ड टाइप्स ऑफ फायर्स अकरिंग इन फॉरेस्ट एरियाज। इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक बार फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो उसको वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। लाइटनिंग एंड ड्रॉट्स आर कॉमन कॉजेज बट इट मे ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ह्यूमन नेग्लिजेंसी। लाइटनिंग और तो ये एक कॉमन कॉज है लाइटनिंग का, लेकिन उसके अलावा अगर ह्यूमंस को भी अगर हम बताते हैं कि दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लाइटनिंग और ड्रॉट तो कॉमन रीज़न है, लेकिन ह्यूमंस की वजह से भी फॉरेस्ट फायर क्रिएट होती है। दे कैन बी थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ एंड दोज लिविंग इन रूरल एरियाज। और इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो सफ़र कर पाती है। नाउ नेक्स्ट इज मैन मेड डिजास्टर। वॉट इज फर्स्ट मैन मेड डिजास्टर इज रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय व्हीकल्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर। आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स होते हैं तो दो व्हीकल्स एक दूसरे से टकराकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, और व्हेन दे रन ओवर पीपल और एनिमल्स। सम रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी सीरियस एंड मेनी पीपल लॉस देयर लाइफ। और कभी कभी रोड एक्सीडेंट्स इतने सीवियर हो जाते हैं कि उसमें किसी की जान भी चली जाती है। सेकेंड नंबर इज दैट इज terrorism. Terrorism, this refers to the violence caused on innocent people. आपने देखा होगा वायलेंस यानी लड़ाई वगैरह, उसमें भी लोगों की जान चली जाती है। Environmental terrorism targets the environment. It deprives others from using natural resources. The FBI of USA believes there is a terrorist group which sets fires going as a mark of protest. So यहाँ पे दे रखा है कि USA का जो ग्रुप है, द FBI जो ग्रुप है, दे आर यूजिंग अ सेट फायर्स एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। नेक्स्ट इज वॉर। वॉर इट इज़ एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, सबको पता है। अपार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ लाइफ, मॉडर्न वॉर्स मेक यूज़ ऑफ आर्म्स बेस्ड ऑफ केमिकल्स। और वॉर्स में कौन से आर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं जो कि केमिकल से बने हुए रहते हैं। एंड जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह यूज़ में आ रहे हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स फेंके गए थे तो उसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या है? एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्रीज हैव बिकम मेजर डिजास्टर। इंडस्ट्रीज में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट इज रेडिएशन लीक। रेडिएशन लीक में क्या होता है? जैसे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कैन स्प्रिंग अ लीक एंड कंटेमिनेट द एनवायरनमेंट। क्या होता है कि न्यूक्लियर लीक होता है कहीं से एनर्जी, तो उसकी वजह से वो पूरे एनवायरनमेंट को सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक इज एन आउटब्रेक ऑफ अ communicable disease that spread at a rapid rate through a human population. This is the most important nowadays. आपको पता है कोरोना इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एपिडेमिक, और उसकी वजह से जैसे कि इट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिसीज़ विच इज़ स्प्रेडिंग थ्रू अ रैपिड रेट। ये भी बहुत जल्दी से बढ़ता चला जा रहा है ना, बट नाउ डेज वी आर हैविंग अ वैक्सीन सो वी कैन कंट्रोल इट। एंड पेंडेमिक इज़ एन एपिडेमिक्स दैट स्प्रेड्स ग्लोबली। सो ऐसी डिसीजेस जो कि पूरे ग्लोबल में फैल जाती है तो उसकी वजह से भी हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पर हमें इम्पैक्ट्स दिए गए हैं, वो आप लोग बुक में रीड करना।
I am just reading the points of these impacts. That is, we have to follow the points. All disasters, whether natural or man-made, have far-reaching consequences on the environment and leave a severe impact on the people. और सभी disasters कुछ ना कुछ impact environment पर देते ही हैं. Very often they harm people and simultaneously change the environment. और उसकी वजह से environment भी harm होती है और हम लोग जैसे severe human peoples are also get affected. As such, important volcanic eruptions may produce combined negative results: human victims, destruction of natural habitats, heavy atmospheric pollution leading to climatic change. तो ये सारे जो फैक्टर्स है, जैसे कि क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, हैबिटेट्स है, ये सारे फैक्टर्स के पे अफेक्ट किसका पड़ रहा है? नेचुरल डिजास्टर्स का अफेक्ट पड़ रहा है. तो ये सारे जो डिजास्टर्स है इनको हम कुछ को कम कर सकते हैं. जो कि मैनमेड डिजास्टर है उनको हम इजीली कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल. लार्ज स्केल फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स कैन डैमेज क्रॉप. और लैंडस्लाइड्स की वजह से क्या होता है? क्रॉप्स को डैमेज हो रहा है और फिर वो किस पर इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? पूरा इकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है. एंड इवन मेनी पीपल्स आर किल्ड विद दैट. On the other hand, technological and industrial accidents have made devastating effects on both population and environment. तो इस तरह से इंडस्ट्रीज ने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे रखा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं, टॉक्सिक स्पिल्स फ्रॉम डंपिंग साइट्स एंड एब्सोल्यूट डैम्स pollute rivers, kill aquatic life and pose serious threats to human health. तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट दे रखा है. दैट इज़ मैन मेड डिज़ास्टर्स ने, उसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स ने भी, लेकिन ज़्यादा जो कि मैन मेड डिज़ास्टर्स है उसकी वजह से हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. सो टेक द केस ऑफ वेल नोन भोपाल एक्सीडेंट. आपने देखा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में. तो उससे में एक पॉइजनस गैस रिलीज़ हुई थी, उसको हम कहते हैं मिथाइल आइसोनेट. तो उस गैस की वजह से क्या हुआ था? थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड विद दैट गैस. और अभी तक उसका इफेक्ट है, यानी न्यू बॉर्न बेबी जो हो रहा है वहाँ पे, तो उस पर अभी तक इफेक्ट आ रहा है. सो देखने को मिलता है. टॉक्सिक गैस डिसअपियर रिलेटिवली क्विकली, लिविंग नो अदर डैमेज. इन दिस केस इफ ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट आर टेकन सेपरेटली, दिस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट शुड बी कॉल्ड योर ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर. लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को हम कह सकते हैं कि एक तरह का एक ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर है, रेदर देन द एनवायरमेंटल एमरजेंसी. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? Planned disaster management is relatively new in India. The Natural Disaster Management Authority came into being on 23rd December 2005. एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, उसका नाम दिया गया है नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि 23rd December 2005 को डेवलप हुई है. और इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. एंड ईच स्टेट हैज़ अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. और हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर उसको हैंडल करता है. सो इन दिस वे आई हैव completed this chapter. Read this chapter from the book. I will send you PDF. Okay, have a nice day.